This meeting is being recorded. Welcome to DRTSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello, Jai Gurudev. Because my guest is Dr. Poonam Raparthi, and we still practice. We would practice art of living. That is why I am greeting her. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Wait for an year to host my Jai Gurudev colleagues. But I think this year we may be needing them more and more because of changes in the climate, which is not helping any human being to survive in a proper way. That is where we say Jai Gurudev. We will be remembered. Jai Gurudev. We have to come to your rescue. Not just on June 21st, World Yoga Day, but as and when humans need, we are there. So that is why this show, I am going to dedicate it to all those aspirants of NEET and NET. One exam got cancelled, the other one is still in a dilemma. So through this show, because 24 lakhs NEET students, 11 lakhs appeared, 11 lakhs applied, 9 lakhs appeared for NET. 33 lakh students suffering because of incompetence of National Testing Agency, or otherwise we are not going to get into those things. But 33 lakh students and their families, they constitute a huge majority of Indians. And what a better way to get relieved by Indianism, that is our own traditions, called yoga. Result will be on your side, and only some may get through, the other may get into something else, but ultimately it should be the peace of mind. When you are stressful, when you are literally suffering, मैंने क्या गलती की है, 3 महीने 4 महीने 2 साल से पढ़ाई करके मैं नीट एग्जाम देती हूँ और इसका ये हाल, तो ये हाल बेहाल ना होना, इसीलिए आज के शो द्वारा आपको संतुलन किस तरह आप बनाए रखिए ताकि आपके रिजल्ट्स आए और अच्छी मार्क्स से आप पास हो, मेडिसिन में जाके एक अच्छे डॉक्टर बनो, और टेट जो नेट है वहां पर इसी तरह वहां लेक्चरर्स बनेंगे नेट के द्वारा. जो पढ़ाई, एजुकेशन is a most important thing. If education collapses, nation will collapse. So we want wonderful teachers out of net, and also they should research. Only country will progress when you research on what is existing. So that research we are doing through the wonderful yoga today, so that your mind stay calm, that peace prevails, you are happy throughout, so that all good will happen to everyone. So I'll take a forward before I show what is exactly meaning of yoga. कुछ कहिए लोगों के लिए, पूनम जी. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. कुछ बताइए. आज योगा डे पे मैं आपको हार्दिक स्वागत करती हूँ. जो ये योगा डे मनाने का एक सोच है, हर घर में योगा लेके जाना है, इसीलिए ये सोच से योगा डे का हम सेलिब्रेट करते हैं. तो आज जो योगा डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, योगा मतलब आसनास ही नहीं है. योगा का मतलब है यूनियन ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल. सिर्फ हम फिजिकली हेल्दी रहना जरूरी नहीं, फिजिकल एंड मेंटल, ये दोनों भी चीजें यूनियन करके जो हमको आगे लेके जाएगा, हमारे पाथ को आगे लेके जाएगा, वो है योगा. तो योगा का मतलब ही है बॉडी, माइंड एंड सोल यूनियन. तो इसको ही हम ये लेते हुए हम आज थोड़ा सा बच्चों को जो तकलीफ हो रहा है आज, जैसे शिवा सर ने अभी कहा है कि नीट के बच्चों को बहुत तकलीफ हो रहा है ये सबसे, तो इससे हम कैसा रिलीफ पाए, तो इसके लिए थोड़ा सा हम आज चिंतन करेंगे, थोड़ा उस पर विचार विमर्श करेंगे. और योगा का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक रिलीजन के कनेक्टेड है या उसको ये है. योगा इज फॉर माइंड, बॉडी एंड सोल. ये आपके अंदर हार्मोनी लेके आता है, पीस ऑफ माइंड लेके आता है, और जब ये आपको लेके आएगा आपके अंदर
हार्मोनी एंड पीस ऑफ माइंड, ऑटोमेटिकली आप जो भी डिसीजंस लोगे आपकी लाइफ में वो करेक्ट होते जाए। और अगर फिजिकली आप हेल्दी रहोगे देन ओनली यू कैन टेक बेटर डिसीजंस। तो फिजिकल एनर्जी, मेंटल पीस एंड जो आत्मा को ज्ञान की जरूरत है वो आपको योगा में मिले। तो ये सब का एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन जो है वो योगा है। Yeah, I'm just showing them what is exactly, many were asking me. So I just wanted to show them what is the full form of yoga. The full form of yoga is your objectives, guidelines, and assessment. Your means, as rightly mentioned, Dr. Poonamji, your body and mind. They should be in spirit, in harmony. We have been practicing, I've been practicing, I'm a late starter from 2006. I never missed my art of living. And because of which I am this way, everything is controlled. So it's not that we are trying to advertise or publicize. It is left to individual's choice. But we are comfortable, we are happy. That is why I am here. Dr. Poonamji is here. We are representing art of living. That is why we say Jai Gurudev to Ravi Shankarji, who has been the part and parcel of the great Ayodhya movement too, wherein he was trying Yes. to get a harmony in between the communities. That is what Yes. all yoga is all about. Art of living is all about. And me and Dr. Poonam, we are all about only that. All about, yes. The harmony. So, Jai Gurudev. So, we still remember Ravi Shankar ji. He was trying to bring Yes. that harmony in between the communities, whether it is Muslim or Hindu, so that a meaningful solution arises, so that we don't fight with each other. So, that is Yes. the beauty Without of, fights. yeah. Yeah. So that is why she was trying to. So this is what yoga is all about. The meaning of yoga is your objectives, guidelines, and assessment. You are the Raja of your own life. The meaning is you are the Raja of your own life when you can control your physiological functions and in harmony with the signals which you generate from the mind in relation to so many things. When I am speaking to her, I want more from Dr. Poonamji. So my thoughts and my body also will synchronize to that. The worst thing is greed and hate and that enmity which comes into your mind. Those are the things which you should leave. Otherwise, your present is gone with them. Not only your present, your entire family will sink. That is why yoga is quintessential. And I'm showing you who is the founder of yoga. Patanjali is known as the father of modern yoga. In some parts of India, Tirumalai Krishnamacharya is also considered as the father of modern yoga. So we practice a modern science called Art of Living by Ravi Shankarji, me and Dr. Poonamji. So we are indebted to such type of yoga where the body Physical is and mental. mentally, both also. So we practice that, me and Dr. Poonamji. Likewise, lakhs and people across the globe, crores of people across the globe, they also practice. And my channels also are at times are recognized by Jai Gurudev. So, and according to Bhagavad Gita, Lord Krishna defines yoga as Samatvam Yoga Uchyate. That means Samatva means balanced state, Uchyate is said to be. Yoga is a balanced state. Yoga is a balanced state of the body and mind. Body Yoga and is mind. a balanced state of emotions. Yeah, madam, बोलिए आप. अब बोलिए. जैसे मैंने अभी बताया कि योगा इज अ बैलेंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। जब आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में रहेंगे तब आप कुछ ना कुछ सही डिसीजंस ले सकते हैं। सो दैट इज द रीजन कि योगा प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। क्योंकि जनरली प्रॉब्लम्स कहाँ आते हैं कि हम इमोशनली हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है और हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। और आजकल का जो पोल्यूशन है बोलिए या स्ट्रेसफुल लाइफ है उससे भी, और जो खाने में भी आजकल पूरा क्या बोलते हैं केमिकल्स आ रहे हैं, फर्टिलाइजर्स आ रहे हैं, तो इसके वजह से भी जो हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं वो हेल्थ इश्यूज को भी हमको थोड़ा सा रोकना है। देन आल्सो आवर योगा विल हेल्प। योगा और थोड़ा सा लाइफस्टाइल, योगा इज अ वे ऑफ लाइफ।
Life. we can say. Yeah. Yoga is a way of life, wonderfully described. That is itself. That in itself is everything. When you eat chemicals, fruit or vegetables, you should be very wary. So Yeah. avoid them. If you can avoid them, and you may ask, what is there? Farmers are doing wonderful job. So many farmers have switched to natural farming. Why don't you buy Natural. such products and you enjoy your life? And according to Patanjali, yoga is defined as chitta vritti nirodha. Chitta vritti nirodha. What madam was telling you, a state of mind free from the states of worry, trouble, anger, or fear. If you can avoid these things, and most importantly, greed, that is also ash, जो greed है, beyond atyasha जो बोलते हैं, that is also leading to state of worry, trouble, anger, or fear. And I think, yeah, this is, I've already shown how Hindu philosophy was describing. And then the best definition, spiritual discipline based on an extremely subtle science, which focuses on bringing harmony between mind and body. This is, we say, art of living. Me and Dr. Poonam practices this harmony so beautifully, believe me. And the way satsang happens, the songs of that Krishna bhajan, that will really lift your spirits. That is what happiness is all about. When you are happy, you can do wonderful things. Because Wonderful. in Telugu, there is a say, Santosham Sagam Balam. If you are happy, you gain half of your strength to combat anything in this world. So that is why that happiness is derived from your mental and physical well-being. So there are 3 types of yoga: karma, bhakti yoga, jnana yoga. I'm not going to dwell into these things now. So this she will narrate you, and I'll just play, because this is our time. I will get rarely this chance to play. So let me play this. If the nature of human beings is compassion, solidarity, and love, then why do people behave like this? Stress, traumas, lack of proper education. Oh, sorry. In an era where the world is torn between aggression and depression, a child was born who, at the age of 4, astonished his teachers by reciting the Bhagavad. Yeah, he's about, I don't want to go into this thing. Again, you will say I'm trying to, Yeah. I'm trying to get this one. Yeah. Late. Not able to get a full screen. If the nature of human beings is compassion, solidarity, and love, then why do people behave like this? Stress, traumas, lack of proper education. A stressed mind makes a person aggressive. Aggressive actions generate more violence. Like a virus, violence infects the whole society. The first step to revert this process is to eliminate stress and negative impressions in people's minds. There is a simple and effective way to achieve this. The International Association for Human Values has developed programs based on breathing techniques, meditation, and education in human values. These techniques were created thousands of years ago, and they have been adapted to our times for the benefit of humankind. The objective is to learn how to solve internal and external conflicts, manage our emotions, and eliminate stress. Live life with enthusiasm and joy. Students, entrepreneurs, government officials, individuals deprived of freedom, people from all religions and walks of life have eliminated stress, insomnia, anxiety, and depression. They have felt a revitalization of their human values. Thousands of people who experience the positive effects of these programs have become leaders in their communities and work together towards the same goal, contributing to the peace and well-being of society. The International Association for Human Values and the Art of Living Foundation were created 30 years ago by Sri Sri Ravi Shankar with a vision of achieving a disease-free body, a stress-free mind, and a violence-free society, the birthright of every human being. I'll play it again in the last. Once again, you'll just get attached watching. Yeah, madam, I hope we have
to come back to the normal. Once you listen to that listening music, the soul and everything is aroused. That is the beauty of this. What happened? Yeah, Madam Ji. Now I'll come to you. Yes. Now you can go ahead. You want me to show those what you have sent? How can we relieve the stress of the NEET and NET? Shall I show them one by one so that नहीं you अभी नहीं, हाँ जस्ट वेट, अभी नहीं। अभी नहीं? अच्छा, आप बात करिए फिर। तो अभी आप क्वेश्चन पूछेंगे मेरा को? या आप बात करिए। तो किस तरह हम वो फिगर्स बताएंगे या लास्ट में बताएंगे? आप जिसने जो भेजा है आसन के बारे में, क्या क्या आसन करनी चाहिए, या किस तरह हम, क्योंकि ये युवा देश है, लेकिन 33 लाख युवा आज रोड पे हैं, किस तरह हम उनकी तकलीफ को थोड़ी सी एटलीस्ट दूर कर सके, क्या, ताकि उनको संतुलन आ सके, क्योंकि इतनी गर्मी में दिल्ली में रोड पे आके वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है, स्ट्राइक चल रहा है, हमको उनकी किस तरह हम रिलीफ दे सकते, राहत दे सकते? तो सबसे पहला तो ये बहुत मतलब जो हुआ है एक्चुअली होना नहीं चाहिए था, कुछ भी रीजन से वो हो सकता है। ऑडियो जो रहते हैं हमारी लाइफ, तो ये क्या करना है, पहले तो थोड़ा सा नॉलेज का जरूरत है तो ये सिचुएशन को हैंडल करने की, क्योंकि लाइफ ये तो फर्स्ट टाइम हुआ है, मतलब जो ये बच्चे हैं अभी लाइफ में जस्ट आगे बढ़ रहे हैं, कुछ हर्डल्स अभी इन्होंने देखे नहीं है, जो पहला अभी इनके लाइफ में जो हर्डल आया है इसको हैंडल करने के लिए थोड़ा सा उनको समझना है कि ऐसे प्रॉब्लम्स लाइफ में बहुत सारे आते रहेंगे, अब इसमें से हमको कैसे निकलना है, क्या करना है हम, तो थोड़ा सा क्या है लेट गो करना है, हमारे माइंड को एक आदत डालनी पड़ेगी कि जो हो रहा है मुझे इसको, ये सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है। अभी जो हुआ है मेरे साथ, अगर मैं ये सिचुएशन को, ये लोगों को जो भी है, तो 80% या 70% जो हमारा स्ट्रेस है यही चला जाएगा। हाँ ये सिचुएशन है, इमीडिएटली आपका माइंड जो है एकदम काम हो जाएगा एंड देन दे विल टेक द डिसीजंस। अगर आप परेशान हो जाओगे, मुझे अरे मेरे साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो जो भी हमारे डिसीजंस रहेंगे या जो सिचुएशन रहेगी वो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी। तो ये सिचुएशन को कंट्रोल भी करने के लिए सबसे पहला जो चीज रहेगा आपको एक्सेप्ट करना है। हाँ ये हुआ है, अब मुझे इसको कैसे करना है, मैं लॉ के थ्रू जाऊं या मैं प्रोटेस्ट करूं या मैं क्या करूं, मगर इसके पहले आपको क्या करना है, आपके माइंड को काम करना है। और काम करने के लिए थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ा सा प्राणायाम और थोड़ा सा योगा, ये सबका एक कॉम्बिनेशन जो है, और थोड़े से ब्रीदिंग टेक्निक्स, इसको अगर ये बच्चे भी थोड़ा सा आधा घंटा या 15-20 मिनट की प्रैक्टिस करेंगे ना, ऑटोमेटिकली उनके ये जो उनका जो प्रोटेस्ट चल रहा है या उनके जो भी उनको या उनके फैमिली को भी जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इसमें से वो लोग बहुत इजीली आगे बढ़ सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। या वंडरफुल, बताते जाइए। तो क्या तो पहले क्या करना चाहिए? वो आसन दिखाऊं या पहले या ब्रीथिंग टेक्निक्स बताऊंगे उनके लिए? हाँ मैं पहले तो ब्रीदिंग टेक्निक्स बताऊंगी, क्योंकि अभी जो सिचुएशन में है हमको फास्टली रिलीज होना है ये स्ट्रेस। तो जैसे मैंने अभी कहा, नॉलेज इज फर्स्ट थिंग जो इनको अभी फॉलो करना चाहिए बच्चों, एक्सेप्ट द पीपल एंड सिचुएशन एज दे आर। तो जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना है पहले, एक्सेप्ट नहीं करेंगे मेरे साथ ऐसा ही क्यों हुआ, देन इट इज प्रॉब्लम। एंड देन हमारे पास कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स है, हाँ वो अगर ये बच्चे थोड़ा सा भी फॉलो करते हैं, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से भी इनका राइट एंड जो लेफ्ट ब्रेन होता है हमारा, ये बैलेंस होना शुरू होता है, स्ट्रेस रिलीज होना शुरू होता है, जो अनवांटेड थॉट्स आते हैं वो भी रुक जाते हैं।
तो आज की सिचुएशन में क्या है, अनवांटेड थॉट्स बहुत आते होंगे, क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ना। शायद मैं लास्ट ईयर एग्जाम देता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता, या अगले साल देता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता था, मेरा एक साल वेस्ट क्यों हो रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे क्वेश्चन इनके माइंड में आ रहे हैं। तो उसको कंट्रोल में करने के लिए सबसे बेस्ट तो सुदर्शन क्रिया है, जो इनको करनी चाहिए अभी, है? मतलब अगर सुदर्शन क्रिया ये लोग करते हैं तो ऑटोमेटिकली पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। जो हमारा 3 दिन का वर्कशॉप है, इसमें हर चीज ही है। गुरुजी ने मतलब जो एक पैकेज ही बना के दिया है यहाँ, हर चीज का। तो इसमें हर चीज आ जाए, इस एक्सैक्ट ऑफ नॉलेज, योगा, मेडिटेशन, वंडरफुल मेडिटेशन आर देयर। तो ये थोड़ा सा मेडिटेशन भी ये बच्चे करेंगे, जैसे 10 मिनट 15 मिनट कोई भी मेडिटेशन, या जस्ट एक अच्छा सा म्यूजिक भी लगा के ये लोग बैठ जाएंगे ना 10 मिनट भी, तो ये बच्चों को ऑटोमेटिकली अंदर जाना सीख जाएंगे। या थोड़ी देर के लिए भी बैठेंगे तो रियलाइज होगा उनको कि हाँ अभी मुझे ये करना है। ये क्योंकि अभी ये लड़ाई कितनी लंबी चलेगी इनको भी पता नहीं, किसी को भी पता नहीं, है ना। मगर इसमें ही अटक के हम नहीं रह सकते, ये भी काम करना है, प्रोटेस्ट भी करो, मगर साथ में कुछ और भी चीजें हमको करते हुए जाना है, खुद के माइंड के लिए भी और खुद के करियर को आगे बढ़ाने के लिए भी और कुछ करना पड़ेगा। यही अटक के नहीं रह सकते। Yeah. तो उसके लिए थोड़ी देर, एक 10 मिनट 15 मिनट आप मेडिटेशन करो। मेडिटेशन से आपको आपके अंदर जाने का मौका मिलेगा, और आपके अंदर जो और भी कोई स्किल है और या प्रॉब्लम है, इसका क्या सोल्यूशन है आपके लिए, वो आपको समझ में आएगा मेडिटेशन के थ्रू। तो अभी मैं आपको एक नाड़ी शोधन प्राणायाम करके बताती हूँ, Yeah. और मेडिटेशन कैसे करते हैं और कितना इजी है मेडिटेशन करना सबके लिए, वो भी मैं आपको नेक्स्ट बता दूंगी। Yeah. तो सबसे पहले हम सीखते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे करना है। इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी वेरी पावरफुल। मतलब इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। अगर आपको निगेटिव थॉट्स लाना है, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, मेमोरी के लिए, हर चीज के लिए बेस्ट प्राणायाम अगर कुछ है तो नाड़ी शोधन प्राणायाम। आपको फोकस दिलाएगा, आपको अभी मुझे नेक्स्ट डिसीजन क्या लेना है, मॉर्निंग इवनिंग 15-15 मिनट्स पे आप इसका प्रैक्टिस करते हो अच्छे से, देन यू विल गेट द चेंज इन योर माइंड। आपका स्ट्रेस लेवल कितना निकल जाएगा, उतना निकल जाएगा। सो वी विल लर्न, टेक योर बोथ फिंगर्स, thumb on right nostril, ring finger on your left nostril, 2 fingers in between your eyebrows. Then breathe with your left nostril. Slowly breathe, and then hold your breath just for a while, and then breathe out with your right nostril. Slowly take more time than inhale. Again, wait for a while, and again breathe with your right nostril. Again, wait for a while and breathe out with your left nostril. Take very slow breaths. जितना आप ब्रेथ स्लो लोगे उतना आपका स्ट्रेस निकलता हुआ जाए। This is one cycle. Breathe in with left nostril, wait for a while, again breathe out with right nostril, again wait for a while, again breathe in with right nostril, wait, again breathe out with left nostril. मतलब लेफ्ट से आपको लेना है, थोड़ा सेकंड के रुकना है, अगेन ब्रीथ आउट, अगेन ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ये हुआ एक राउंड। ऐसे आपको मिनिमम एक 15 मिनट तक कंटिन्यू करते रहना है। देन यू फील योर, मतलब इतना स्ट्रेस निकल जाएगा आपका, इससे ही मैं बता नहीं सकती आपको। आप एक बार दिखाइए, अगेन आप एक बार हाँ, दिखा दीजिए। मैं आपको एक बार करके दिखा, एंड कीप योर लेफ्ट हैंड इन चिन मुद्रा ऑन योर thighs.
ऐसा हुआ एक राउंड आपका। ये एक बार ये जो है फिंगर से एक बार बताइए ताकि दे डोंट गेट कंफ्यूज्ड, व्हिच वन शुड बी ऑन द राइट एंड व्हिच वन शुड बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ नॉस्ट्रिल. Thumb is on right nostril and Yeah. ring finger on your left Left. nostril. Right. Then Yeah. these two fingers. And जब आप लेफ्ट nostril से you are taking breath, then आपको thumb से right nostril बंद करना है. Yeah. And open your left nostril. Again, close your left nostril with your ring finger and open your right nostril. Wonderful. This is Nadi Pranayama. This is called नाड़ी शोधन प्राणायाम. Nadi Shodhan. हमारे बॉडी में 72,000 नाड़ीज होते हैं. अगर उसका शोधन मतलब क्लीनिंग, Cleaning. उसको क्लीन करना है. हम लोग हमारे बॉडी को तो रोज साफ करते हैं साबुन लगा के, मगर अंदर से क्लीन कैसे करेंगे उसको? तो फॉर दैट पर्पस देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स. आयुर्वेदा का अलग अलग से आयुर्वेदा अपने आपको क्लीन करेगा, मगर आपको नाड़ीज को अगर क्लीन करना है तो नाड़ी शोधन प्राणायाम इज द बेस्ट वे टू क्लीन योर 72,000 नाड़ीज. एंड इसमें और 3 नाड़ीज बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना. तो ईड़ा और पीड़ा नाड़ी को बैलेंस करने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम. अगर ये 2 नाड़ीज आपके बैलेंस में चलते हैं या सुषुम्ना नाड़ी में आप आते हो तो आपका 100% स्ट्रेस निकल जाता है. आप प्रेजेंट में आ जाते हैं. आपको ना फ्यूचर का टेंशन रहता है ना पास्ट का वरीज रहता है. तो दैट इज द रीजन नाड़ी शोधन प्राणायाम इज वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक टू रिलीव योर स्ट्रेस. अगेन भ्रामरी प्राणायाम. बहुत ज्यादा आपको तकलीफ हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, और क्या होता है स्ट्रेस ज्यादा होने से हमको याद नहीं आता है, सडन में हम चीजें भूलना लगते हैं. तो उसके लिए भ्रामरी प्राणायाम. टेक योर Index finger. eyes Index finger. index finger Into your And- ears. लॉन्ग ब्रीथ. और जब आप ब्रीथ आउट करोगे देन आपको कैसा आवाज निकालना है? हनी बी के जैसा. ये आवाज निकाल. एक बार मैं दिखाती हूँ आप लोगों को. टेक लॉन्ग ब्रीथ. और ये थोड़ा सा जो हमारे इंडेक्स फिंगर है ना, इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करना. Yes, block करना है. अगर आप इसको नियरली 10 to 15 मिनट्स तक करते रहोगे या 5 मिनट्स भी करो, इमीडिएटली यू फील द वाइब्रेशंस ऑन योर ब्रेन. ये पूरा जो ब्रेन है ना, वहीं वहां पर आपका पूरे वाइब्रेशंस आपको फील होंगे ये किस तरह प्राणायाम रिलीज करने करना है एक से. बार बताइए. वी हैव लास्ट 10 मिनट्स, तो किस तरह वो हनी बी का साउंड एक बार बताइए. हाँ. हम्म. ये देखो, आपको है ना क्या करना है, ये नाक है, नोज है, इसमें से यहाँ से वाइब्रेशन एयर को फ्लो करना है. हम्म. और यहाँ आपको वाइब्रेशन फील होंगे. ब्रेथ है, यहाँ से आपको वाइब्रेशंस फील होंगे. हम्म. और इसमें भी और एक है जो बहुत पावरफुल टेक्निक है स्टूडेंट्स के लिए, वो है कीप योर थंब इन योर, कीप one here, one here, one here, and one. Again, the same sound you have to.
स्लोली आपको आराम से, और उसके बाद 1 मिनट तक आपको आंखें बंद करके रखनी है। एंड देन वन मोर वेरी पावरफुल मुद्रा इन चिन मुद्रा। ये आपका स्ट्रेस भी रिलीफ करेगी, आपका मेमोरी भी बढ़ाएगी, आपको फोकस करने में भी और आपका स्किल को डेवलप करने में भी ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये मुद्रा। बस इसको क्या करना है, जैसे मैंने अभी कहा ना कि 10 मिनट मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन का मतलब क्या है, बहुत बैठ जाना ऐसा नहीं, जस्ट क्लोज योर आईज एंड सिट, बोथ योर हैंड्स इन चिन मुद्रा एंड सिट। जो भी, या म्यूजिक लगा लीजिए या कुछ मेडिटेशन के वीडियोस होते हैं वो लगा लीजिए, कुछ भी नहीं है आपके पास, देन बस बैठ जाओ। एक 10 से 15 मिनट आप बैठ के देखो, जितने भी थॉट्स आ रहे हैं, स्टार्टिंग में बहुत थॉट्स आएंगे आप, तो लोगों को लगता है कि अरे मेरा मेडिटेशन हो रहा नहीं, मुझे मेडिटेशन में मन नहीं लग रहा। तो स्टार्टिंग में 1-2 दिन आपको ऐसा तकलीफ होगा, 2 दिन, 8 दिन, 10 दिन होगा ऐसा तकलीफ, मगर देन स्लोली स्लोली यू विल गेट योर फाइंड क्वेश्चंस ऑफ योर आंसर्स। आपके अंदर ही आपके आंसर्स है, आपको क्या करना है, अगर मैं इसमें ये हो गया तो मुझे आगे क्या करना है। ऑल द थिंग्स आर इन यू ओनली। उसका आप कोई आप 10 लोगों के आप क्वेश्चंस पूछोगे तो हर कोई अपने अपने हिसाब से, अगर मुझे पूछोगे क्या करियर करना, तो मैं अपने हिसाब से बोलूंगी, क्योंकि माई एक्सपीरियंस इन आयुर्वेदा, माई एक्सपीरियंस इन योगा, सो आई विल टेल लाइक दैट ओनली। तो जितने लोगों को आप क्वेश्चंस पूछते जाओगे या प्रॉब्लम्स बोलते रहोगे, आपका प्रॉब्लम कम नहीं होगा, सॉर्ट आउट नहीं होगा आपका प्रॉब्लम, और बढ़ेगा ही, आपका कंफ्यूजन ही बढ़ेगा उससे, मगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। आपका प्रॉब्लम कब सॉल्व होगा, जब आप अपने आप से वो क्वेश्चन पूछोगे, 10 मिनट अपने आप के साथ बैठोगे या नेचर में 10 मिनट जाके आंखें बंद करके बैठोगे या एक कमरे में बैठोगे अपने आप के साथ, देन ओनली यू विल गेट योर आंसर्स। जितना पूछोगे उतना कंफ्यूज, और जितना आप अपने अंदर रहोगे, देन यू विल फाइंड योर आंसर्स। Wonderful. एग्जैक्टली आपको पता होगा, आपका स्ट्रेस भी ऐसे ही रिलीज होगा, कंफ्यूजन भी ऐसे ही क्लियर होगा, और आगे कैसे बढ़ना है, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी कहाँ से निकालना है, वो आपके अंदर ही है वो चीज। बस 10 मिनट मेडिटेशन करिए, लॉन्ग डीप ब्रेथ लेते जाइए। अगर आपको मेडिटेशन भी करना नहीं हो रहा है, मतलब कैसे कैसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं माइंड में, देन फोकस ऑन योर ब्रेथ, Yeah. टेक Wow. लॉन्ग डीप ब्रेथ्स, Yeah. कीप योर हैंड्स इन चिंता, Yeah. keep on thighs and take long breaths and focus on breath. स्लोली स्लोली आप देखोगे 1-2 दिन में आपका स्ट्रेस भी रिलीज हो जाएगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के बाद एक 10 मिनट आप ऐसे बैठ जाइए, 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा बस, आप ज्यादा कुछ नहीं लगेगा। मैडम जी, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, वी हैव गॉट 4 मिनट्स। आज जो भी किया है नाड़ी, वो एक बार बताएंगे फिर, ताकि वी कैन जस्ट एंड अप स्ट्रेटिंग। आज जो भी बताए, क्योंकि तो दूसरे आसन नहीं जा सक रहे हैं, नेक्स्ट शो में पक्का करूंगा मैं। हाँ ना, थोड़े आसनास भी रह गए हैं सबके, या जिससे हमको स्ट्रेस रिलीज फील होगा। वो नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट, तो ये 4 आज जो हाँ बताए फिर एक बार दोहरा दीजिए, ताकि लोगों को समझ में आए। 4 मिनट है। हाँ, ओके। तो मैं ये मतलब अभी इन शॉर्ट में आपको बताती हूँ। सबसे पहला चीज है एक्सेप्ट द पीपल एंड सिचुएशन। जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, पहले उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, जो भी लोग आपके लाइफ में है उनको आप एक्सेप्ट कीजिए, एंड देन आपको लेट गो करना है। लेट गो अगर जितना आप करते जाएंगे, और ये हम किसके लिए कर रहे हैं, हमारे को खुद को स्ट्रेस रिलीज करना है ना, चीजों को पकड़ के नहीं बैठना है। देन आपको करना है थोड़ा सा मेडिटेशन, एक 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए मेडिटेशन कीजिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम जो मैंने अभी आपको बताया है, टेक योर thumb on your right nostril, ring finger on your left nostril, both fingers in between your eyebrows. Take the
with your left nostril. Hold. Again, breathe out with your the right nostril. Again, take breathe with your right nostril. Hold. And with left nostril. Wonderful. ये हुआ आपका First एक one. राउंड. ऐसे आपको 10 से 15 मिनट या 5 मिनट भी करोगे आप, then also it is okay. And then take your Wow. hands in Chin Mudra and be with yourself. Anywhere you are, no, just एक रूम में कहीं भी बैठो, बस एक 10 minutes आप अपने आप के साथ बैठो. Right. And then you will find the answers. अब जितने भी आपके लाइफ में अभी प्रॉब्लम चल रहे हैं, फ्यूचर के लिए प्रॉब्लम चल रहे हैं, मेडिटेशन इज द ओनली सॉल्यूशन एंड सम योगा एक्सरसाइज. Okay, बट last 2 minutes. मेडिटेशन Last अभी 2 minutes. मेडिटेशन Last 2 minutes बता दीजिए क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि टाइम I hope everyone will तो बस understand मेरी you. They will get relieved through this. So last 2 minutes आप क्या बताना चाह रहे हैं बताइए. बस मैं लास्ट मिनट में ये बताना चाहूंगी कि फोकस ऑन योरसेल्फ एंड डू मेडिटेशन. Audio. Audio, madam, audio. सुदर्शन क्रिया Yeah, it's okay now. आ रहा है. हाँ, तो डू सुदर्शन क्रिया इफ पॉसिबल. अदरवाइज डू 10 to 15 minutes meditation daily, morning and evening. You feel your changes. आपका माइंड पूरा चेंज हो जाएगा. इस आपका राइट एंड लेफ्ट ब्रेन, डिसीजन मेकिंग पावर, जो भी मैं, और इससे आपका है ना, नियरली आप 30-40 डेज भी इसको करोगे तो आपका इंट्यूशन पावर बढ़ेगा. Yeah. इंट्यूशन पावर बढ़ने से भी आपको बहुत सारे चेंजेस आपके अंदर दिखना शुरू हो जाएगा. इंट्यूशन पावर मतलब आपको आगे क्या करना है, ये क्लियरिटी ऑफ माइंड आपके अंदर आ जाएगा. सो 10 minutes ऑफ मेडिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू गाइस. एंड This देन is for फोकस today. ऑन योर ब्रेथ. Yeah. And Yeah, बोलिए. जितना गुस्सा आता है ना, उतना हमारा डिसीजन मेकिंग पावर कम हो जाता है, या हम सही डिसीजन नहीं ले पाते. सो कीप योर माइंड काम. Right. तो इसके लिए ही आपको क्या करना है, नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है. एंड थोड़ा भस्त्रिका एक प्राणायाम है, अगर वो आप करोगे तो आपको और जल्दी से फर्क आ जाएगा. कीप योर Definitely. हैंड्स लाइक दिस. Next time. Yeah. Yeah, I think we are done last minute. Next show I'm going to do within a week with Dr. Poonamji Okay, at that time. And as she explained, be yourself, meditate, don't agitate, be in calm, the chin mudra, and follow her whatever 4 breathing exercises she's taught you. With that,